आसनसोल दुर्गापुर आयुक्तालय दुर्गापुर मुचीपाड़ा ट्रैफिक पुलिस के कार्यवाहक ओसी सतीनाथ सील ने बुधवार को बृहन्नलास के सहयोग से आम लोगों और मोटर चालकों को एक नई तरीके से चेतावनी देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए उनका नेतृत्व किया। आमतौर पर हम उन्हें खुशी के अवसर पर देखते हैं, जैसे कि जब एक नवजात शिशु का जन्म होता है तो वे घर आते हैं और नाचते गाते हैं, और उन्हें शादी के घर में भी खुशी के अवसर पर भी देखा जाता है। आज वे क्रिसमस पर एक जागरूकता संदेश देने के लिए आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट दुर्गापुर मुचीपाड़ा ट्रैफिक के साथ हाथ मिलाते नजर आए। आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट के डीसी ट्रैफिक वीजी सतीश पशुमती आईपीएस टीआई फोर संतोष भगत मौजूद थे। ओसी मुचीपाड़ा ट्रैफिक सतीश नाथ सील और उनके साथ मुचीपाड़ा के ट्रैफिक अधिकारी भी थे। আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট থেকে ট্রাফিক সম্পর্কিত যে সচেতনতা সেটা আমরা বিভিন্ন সময়ে পালন করে আসছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা মানুষের ট্রাফিক সংক্রান্ত যে নিরাপত্তা, সেই সংক্রান্ত নিরাপত্তা মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা সর্বস্তরে কাজ করি। আজকে আমাদের এখানটাতে আমাদের কিন্নর সমাজ থেকে এনারা এসছেন আমাদের কাছে, এবং আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যেকটা মানুষকে যেভাবে এনারা সচেতন করছেন সেটা একটা খুব ভালো দিক। আমরা সকল মানুষকে আবেদন জানাই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ থেকে যে আপনারা হেলমেট পরুন এবং গাড়ি চালানোর সময় সিট বেল্ট ব্যবহার করুন, এবং যে ট্রাফিক সেফটি আছে সেগুলোকে আপনারা মেনে চলুন। তাতে আপনার পরিবারের যারা আপনার অপেক্ষায় বসে আছে তাদের যেন মুখে হাসিটা ফুটে থাকে। এরপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যাত্রী। আজকে আমরা 25শে ডিসেম্বর বড়দিনে সবার প্রথমে বার্তা দিলাম যে 2025 সালের অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো সব সাধারণ মানুষকে। আর অনেক লোকেই আছে যারা ট্রাভেল করে রাস্তার মধ্যে, যারা বাইক স্কুটি চালায়, যারা হেলমেট পরে না, যাদের গাড়ির লাইসেন্স থাকে না, কাগজপত্র নিয়ে বেরায় না, তাদেরকে বললাম যে আপনারা হেলমেট পরে বেরাবেন, কারণ আপনাদের সুরক্ষা আপনাদের কাছেই। আর অনেক যারা গাড়ি নিয়ে বেরায়, অনেকে যারা তারা সিট বেল্ট লাগায় না নিজের আয়েশ ফুর্তির জন্য, তাদেরকেও সতর্ক করলাম যে আপনারা আগে থেকে সিট বেল্ট লাগিয়ে চলবেন, কারণ মানুষের জীবনটা হচ্ছে 1 সেকেন্ডের মধ্যে হচ্ছে মানুষের দুনিয়াটাই বদলে যেতে পারে। তো সেই 1 সেকেন্ডটা যাতে না আসে তার জন্য আগে থেকে আমরা মানুষকে সতর্ক করলাম যে আপনারা এই জিনিসটা, আপনারা যেগুলো আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সমস্ত মানুষদের সুরক্ষিত করার জন্য, ওনাদের হেলমেট পরার জন্য এবং সিট বেল্ট লাগানোর জন্য, গাড়ির পেপারগুলো যাতে ঠিক রাখে, সব কিছু বলার জন্য ওনারা বলে থাকেন। কিন্তু ওনারা তাতে অনেকে গুরুত্ব দেয় না। খুশির দিনগুলোতে কি করে ম্যাক্সিমাম মানুষরা কি করে, নেশা অবস্থায় রাত ভিত্তিক গাড়ি চালায়, মদ্যপান হিসেবে এমন স্পিডে গাড়ি চালায়, ট্রাফিক সিগন্যালগুলো মানে না, নিজেরা সিট বেল্ট লাগায় না, নিজেরা হেলমেট পরে না, তার জন্য বিভিন্নভাবে দুর্ঘটনা হয়। এবং ওনাদের যে দুর্ঘটনা হয়। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे विश्व के साथ साथ रानीगंज में भी ईसा मसीह का जन्मदिन यानी क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। कल रात से ही लोग रानीगंज के वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में जमा हुए थे। उन्होंने सभी धार्मिक रीति रिवाज का पालन करते हुए क्रिसमस मनाया। प्रार्थनाएं हुई। आज सुबह भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चर्च में देखी गई। इस मौके पर वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च के रेवेडर सुमंतो दास ने कहा कि पूरे देश में के साथ साथ रानीगंज में भी ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस मनाया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज से 2000 सालों से भी ज़्यादा समय से पहले ईसा मसीह ने जन्म लिया था, उस समय वह एक गौशाला में पैदा हुए थे, लेकिन आज उनके जन्मदिन पर पूरे विश्व में धूमधाम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। कल रात से ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा। आज भी श्रद्धालु चर्च की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जन्मदिन सिर्फ ईसाई समुदाय के लोग नहीं, पूरे विश्व मनाता है, क्योंकि ईसा मसीह ने विश्व शांति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, और यही वजह है कि ईसा मसीह को सभी धर्मों के लोग समान रूप से सम्मान करते हैं। वहीं जब हमने एक श्रद्धालु सुमोना से बात की तो उन्होंने कहा कि वह कल रात से ही चर्च में आ रही है। कल भी उन्होंने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया था और आज भी वह यहाँ पर आई है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी से वह सराबोर है
और वो चाहती है कि सभी लोग खुश रहे, समृद्ध रहे और सब पर ईसा मसीह की कृपा बनी रहे। आपको बता दें कि इस साल रानीगंज के वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च को तमिलनाडु के वेल्लोर इलाके में एयरपोर्ट रोड पर स्थित चैपल की तर्ज पर सजाया गया है। इस अनोखा सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। উইশ ইউ অল হ্যাপি মেরি ক্রিসমাস ডে। আজ থেকে প্রায় হাজার হাজার বছর আগে রোমের ব্যাথলিয়াম শহরে কুমারী মা মেরির কোল আলো করে পৃথিবী লোকে এসেছিলেন ঈশ্বর পুত্র যিশু খ্রিস্ট। ঈসা মেসিহ জনমানুষের জন্য আত্মত্যাগ এবং সেবাই ছিল ওনার মূল উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সাড়ম্বরের সহিত পালন করা হয় আজকের এই 25শে ডিসেম্বর, যেটি ঈসা মেসির জন্মোৎসব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য জেলাগুলিতে বিভিন্ন গির্জাঘর, চার্চ এবং চ্যাপেলগুলিতে দেখা যায় আজকের দিনটিতে তার জন্মোৎসবকে সামনে রেখে চার্চ গির্জাঘরগুলিতে আলোকসজ্জার এক অভিনব নিদর্শন। খ্রিস্ট ধর্মের মানুষেরা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা আজকের এই শুভ দিনটিতে বড়দিনের কেক এবং খ্রিসমাসের কার্ড একে অপরকে বিনিময় করে আজকের এই দিনটিকে পালন করে। ভারতবর্ষ ছাড়াও বিভিন্ন দেশগুলিতে আজকের এই 25 ডিসেম্বর দিনটি রাষ্ট্রীয় ছুটি হিসাবে পালন করা হয়। আসুন আপনারা সরাসরি আপনাদেরকে নিয়ে চলে আসবো আজকে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ শহর কয়লাখনি এলাকায়, যেখানে গির্জাপাড়া স্থিত ওয়েসলিয়ান মেথোডিয়াস চার্চ যেভাবে আজকে 25শে ডিসেম্বরকে সামনে রেখে সাজিয়েছে এবং কত জনমানুষের ভিড়, সেই চিত্রপট তুলে ধরবো। এবং এখানে ওয়েসলিয়ান মেথোডিয়াস চার্চের যিনি ফাদার রয়েছেন, ডিরেক্টলি জুড়ে যাবো ওনার সাথে। এবং আপনাদেরকে জানাই, ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভারত আজকের এই দিনটিতে অভিনব সজ্জায় সেজে উঠেছে। এখন আমরা উপস্থিত রয়েছি তামিলনাড়ুর ভেলোর শহর এলাকায়, যেখানে উপস্থিত রয়েছি আরকোট রোডের ঠিক সামনে, যেখানে এই মুহূর্তে টিভি প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছি। সেটি হচ্ছে সিএমসি খ্রিস্টান মেডিকেল কলেজ। আজকে সিএমসি খ্রিস্টান মেডিকেল কলেজ সেলিব্রেট করছে 100 ইয়ার্স অফ টাউন ক্যাম্পাস, 100 বছরে পদার্পণ করলো আজকের এই হসপিটাল। এবং সাথে সাথে 25শে ডিসেম্বর আজকের বড়দিন। এখানে আমার পেছনে সরাসরি দেখছেন আপনারা আমাদের টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে এই চ্যাপেল যেখানে রয়েছে, এই চ্যাপেলকে আলোকসজ্জা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং ভেতরে চলছে যিশুর বাণী পাঠ এবং খ্রিস্ট ধর্মের যে মহান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের পাঠ। ভেতরে প্রেয়ার এখনো পর্যন্ত চলছে এবং আমরা সরাসরি এখানে সাধারণ মানুষের সাথে জুড়ে যাব। ওনারা দেখে নিই আজকে আমাদের এই 25শে ডিসেম্বর এই দিনটিকে সামনে রেখে আজকে বিশেষ কি তাৎপর্য দিচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। ওয়েসলিয়ান মেথোডিস্ট চার্চ রানীগঞ্জের পক্ষ থেকে রানীগঞ্জবাসীকে জানায় প্রভু যীশু খ্রিস্টের পবিত্র নামে শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, স্বর্গের শান্তি। আপনাদের মাঝে অনেক অনেক আনন্দ প্রভু যীশুর জন্মদিনে নেমে আসে। আজ থেকে 2024 বছর পূর্বে প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্ম এবং ধীরে ধীরে সেই জন্মদিন বেথলেহেমের গোয়ালঘর থেকে সমগ্র বিশ্বে আজকে পালিত হচ্ছে। ছোট্ট সেই গোয়ালঘরে প্রভু যীশু যাবপাত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা আজকে কোটি কোটি খ্রিস্ট ভক্তের হৃদয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি সেই জন্মদিনকে মানুষেরা অনেক অনেক আনন্দের সঙ্গে পালন করছে। আজকে পবিত্র আমরা তো সকাল থেকে কালকে রাত থেকে ইনফ্যাক্ট খুব এক্সাইটেড যে রাত 12টা বাজবে, তারপরে আমাদের ফেস্টিভ্যাল শুরু হবে। যিশু বাবা জন্মেছিলেন, আমরা খুব আনন্দিত। সকাল থেকে একদম রেডি ফেডি হলে খুব 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 আনন্দে সবার সাথে দেখা হবে, একটা গেট টুগেদার হবে। খুব ভালো কাটে দিনটা, প্রত্যেক বছর এরকম কাটে, খুব ভালো কাটে। আমি তো সবাইকে বলবো যে সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এখনকার দিনে সব থেকে বড় কথা সুস্থ থাকবেন আর সবাইকে আনন্দ দিয়ে যাবেন। মেরি ক্রিসমাস। আমার নাম সুমনা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो पूरे ठंडी के मौसम में ही सैलानी पिकनिक स्पॉट पर जाया करते हैं, लेकिन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस हो या नए साल, उस दिन लोग और भी ज़्यादा संख्या में पिकनिक स्पॉट का रूप करते हैं। आज क्रिसमस के दिन आसनसोल के प्रख्यात पिकनिक स्पॉट मैथन पर लोगों के काफ़ी भीड़ देखी गई। लोग अपने परिवार के साथ इस दिन को मनाने के लिए पहुंचे। यहां पर सुबह से ही सैलानियों की भीड़ थी, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और आसनसोल नगर निगम की तरफ से मैथन के प्रवेश द्वार पर जो वेलकम गेट बनाया गया है, उस गेट से होकर सैलानी पिकनिक स्पॉट की तरफ बढ़े। और जब हमने कुछ सैलानियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर सुविधाएं पहले से और कहीं बेहतर हुई है, जिससे कि उन्हें पिकनिक मनाने में और मजा आ रहा है। বাদামতলা গড়িয়া। এই বিষয় প্রথম না, এটা দ্বিতীয়বার। কেমন লাগছে? খুব সুন্দর জায়গা, খুবই ভালো লাগছে। আজ তো বড় দিন, হ্যাঁ, কিভাবে কাটাবে? এই ফ্যামিলির সাথে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে চলে এসেছি। এবার ঘুরবো এদিক ওদিক, খাওয়া দাওয়া রয়েছে। এখানে কোথায় কোথায় ঘোরার পরিকল্পনা রয়েছে? এই দুটো দ্বীপে যাবো, আনন্দ দ্বীপ আর সবুজ দ্বীপ, আর সাথে ওইদিকে ব্যারেজ আছে, ওখানে যাবো। মানে আজ সারাদিন আনন্দ হ্যাঁ, সারাদিন। ফ্যামিলির সাথে। হ্যাঁ, পুরো ফ্যামিলি। কি নাম? সুলতানা মন্ডল। ঠিক আছে, কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, প্রথমবার এসেছি আমরা, তো ভালো লাগছে। দ্বীপ আছে এখানে, খুব সুন্দর জায়গা, আর এই প্রথমবার আর কি আমি ফ্যামিলির সাথে এসেছি। আপনারা তো এখন তো নৌকায় চাপছেন, কেমন আনন্দ লাগছে? খুব ভালো লাগছে, ছোট ভাই বোনরা এসছে, সবাই এসছে, বাড়ির মা পিসিমণি সবাই এসছে, খুব ভালো লাগছে। কোথায় কোথায় ঘুরবেন? আমরা এখানে কোথায় আছে, কোথায় এই যে দ্বীপ, তারপর আবার কোথায় কয়লা খনি আছে, সব আমরা যাওয়ার প্ল্যানিং আছে। এই প্রথম এখন আর কি খাওয়া দাওয়া করেই বেরালাম। কি নাম? আমার নাম রোকসানা হালদার। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल महिला उद्योग की तरफ से आज बरनपुर के एक चेसायर होम में दिव्यांग लोगों के साथ समय बिताया गया और उन्हें कुछ भोजन सामग्री और शीत वस्त्र बांटे गए। इस मौके पर आसनसोल महिला उद्योग की कर्णधार और मंत्री मलय घटक के पत्नी सुदेशना घटक मुख्य रूप से उपस्थित थी। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों को भोजन सामग्री और ठंड के लिए कुछ कपड़े, स्वेटर, मफलर आदि दिए गए। इसके साथ ही यहाँ पर इन दिव्यांग लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इन्होंने दिखा दिया कि प्रतिभा के मामले में यह किसी से कम नहीं है। यहाँ पर केक भी काटा गया और सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इसके साथ ही यहाँ पर संगीत की धुन पर लोग थिरकते भी दिखे। कार्यक्रम के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए सुदेशना घटक ने कहा कि वह हर विशेष अवसर पर यहाँ आती है और यहाँ के दिव्यांग बच्चों और अन्य व्यक्तियों के साथ समय बिताती है। সাথেই কেন বেছে নিলেন আজকের দিনে? আমরা প্রত্যেক বছর, এবছর নয়, আমরা প্রত্যেক বছর 25 ডিসেম্বর ওদের সাথে আমরা পালন করি। আমরা আসি, কেক কাটি ওদের সাথে, আমরা সারাদিন থাকবো আজকে ওদের সাথে। তারপর খাওয়া দাওয়ার আমাদের সব প্রোগ্রাম থাকে, কারণ এই বাচ্চাদের জন্য বেছে নিলাম এই জন্যই যে ওদের একটু
যিশুর কৃপা যেন ওদের ওপর সবসময় থাকে, এটাও নিশ্চয়ই ভগবানের আশীর্বাদ ওদের জন্য বিশেষ করে খুব দরকার। হ্যাঁ, যেহেতু ওদের তো সেই অর্থে কেউ নেই, তো ওই জন্য ওদের সাথে করি। ইভিন আমরা দেওয়ালিও ওদের সাথে উদযাপন করে ওদেরকে একটু আনন্দ দেওয়া, আর কিছু না। মানে সমাজের থেকে ওরা তো অনেকটা দূরে, হ্যাঁ, আর্থিক দিক থেকে হোক, মানসিক দিক থেকে হোক, শারীরিক দিক থেকে হোক, ওরা তো সত্যিই অনেক মানে পিছিয়ে পড়ায়। তাই ওদের সাথে করে আমরাও খুব আনন্দ পাই। এবং আমরা দেওয়ালি, 25 বৈশাখ, তারপর আমরা মানে 25 ডিসেম্বর, তারপর আমরা আমাদের হোলি, আমাদের জন্মদিন, পিকনিক, এগুলো ওদের সাথে করি। হ্যাঁ, আর আমরা অনলাইন স্কুলেও করি অনেক বাচ্চাদের, কিন্তু এদের সাথে আমরা খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত আজ বেশ কয়েক বিগত কয়েক বছর। এই বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের সম্বন্ধে আপনি সমাজকে কি বার্তা দিতে চাই? आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ईसा मसीह के जन्मदिन यानी क्रिसमस के मौके पर कल रात बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसनसोल और आसपास के क्षेत्र के विभिन्न गिरजाघर में पहुंचे और उन्होंने क्रिसमस की प्रार्थना में सम्मिलित होकर इस पवित्र दिन को मनाया। इस मौके पर आसनसोल के विभिन्न गिरजाघर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। सभी गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। क्रिसमस के पवित्र अवसर पर इन गिरजाघर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने ईसा मसीह के जन्मदिन पर विशेष प्रार्थना में शामिल होकर अपने और अपने परिवार के साथ साथ पूरे विश्व के लिए शांति की कामना की। होता है वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हमने इस प्रकाश का रहस्य इस पृथ्वी पर जान लिया, स्वर्ग में हमें इसके आनंद का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे द्वारा जो खिड़की के पास लोग बैठे हैं, खिड़की तरफ आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ईसीएल के चरणपुर कोयला खदान में विस्फोट से मकान हिल रहे हैं। यहां तक कि आसनसोल के बाराबनी में चरणपुर कोयला खदान कार्यालय में भारी तोड़फोड़ भी की गई। उन्होंने कार्यालय का कंप्यूटर निकालकर आग लगा दी। यहां तक कि ईसीएल की कई कारों में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना से कार्यालय के कर्मचारी डर कर भाग गए। खबर मिलते ही बाराबनी पुलिस और सीआईएसएफ बल पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ईसाइयों का प्रमुख या कहे सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस को लेकर पूरे कोलकाता में धूम मची है। विभिन्न गिरजाघर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रात्रि 12 बजे प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया गया। कोलकाता में सबसे बड़े चर्चों में से सेंट पॉल कैथेड्रल में क्रिसमस को लेकर उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। लोगों की भारी भीड़ इस चर्च में देखी जा रही है। कोलकाता का सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च एशिया का पहला ऐसा चर्च था जो किसी संत के नाम पर बनाया गया था, इसलिए इसे एशिया का पहला एपिस्कोपल चर्च कहा जाता है। चर्च के अंदरूनी हिस्से में पवित्र कर्मों का चित्रण किया गया है। ये भारत के महत्वपूर्ण चर्च में से एक माना जाता है। करीब 175 साल पहले इस चर्च को बनाने में लगभग 4.35 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस चर्च में एक साथ करीब 1000 लोग प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च गोथिक कला का बेजोड़ नमूना माना जाता है। इसकी आधारशिला 1839 में रखी गई थी और साल 1847 में निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। इसे एशिया में पहला एपिस्कोपल चर्च का तमगा हासिल है। यह चर्च उन सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है जिन्हें गोथिक शैली में बनाया गया है। इस चर्च का निर्माण कोलकाता में यूरोप के लोगों की बढ़ती जनसंख्या को देखकर शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय मौजूद सेंट जॉर्ज चर्च छोटा पड़ने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्जी पासपोर्ट मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मुख्तार आलम नामक व्यक्ति को फर्जी पासपोर्ट गिरोह में शामिल होने के आरोप में उत्तर 24 परगना के दत्तपुकुर से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मुख्तार को 2021 में एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्तार के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से कई लोगों के पैन और एटीएम बरामद हुए हैं। बांग्लादेश में अचानक बने हालात, बंगाल में घुसपैठ, आतंकवाद के संदेह में गिरफ्तारियां, इन सभी घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इससे पहले समरेश नाम के एक शख्स को बंगाल में फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुख्तार आलम इस समूह के सबसे करीबी लोगों में से एक था। मुख्तार को उसके घर से लगभग 5:15 में गिरफ्तार किया गया। उससे पहले वर्ष 2021 में चुचुड़ा पीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। গাড়ি এখানে লাগিয়েছিল আর কিছু জানে পাতে না করলে আমি বুঝতেই পারি। সামনে বাড়ি থাকলে চিনবে না। লোক তো ভালো ছিল, খুব ভালো ছেলে আছে, খুব ভালো, কোনো ই নেই। হ্যাঁ লোকটাই ভালো ছিল ওটা। আমরা তো সব দেখে এখানে সব বাঙালি আছে, আমরা বিহারি, ঠিক আছে। সামনে সামনে আছে তো একটু ভালো ছেলে, তো সব জিনিস তো দেখতে আছে। এ কি বলে বাইরে পাঠায় লোকজন, আমাদের ঘরটা কিনে তার দিকে আগে থেকে আছে পরিবার, একটা ছেলে, একটা মেয়ে, একটা বউ আছে, একটা নাতনি আছে, আর মুক্তার বউ আছে। ও আয়ুর্বেদিক ডাক্তারকে রাখিয়েছিল, এক মাস থাকলো আর চলে গেছে, বোর্ড পলি নিয়ে যায়নি। না না এসব করিনি সব। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে যে উনি ভুয়ো পাসপোর্ট বানাতো, আগে করতো। এর আগেও না বাবা কি হলো হঠাৎ করে গ্রেফতার করলো নাকি? জানি না, হঠাৎ আসলো পুলিশ আসলো, আমরা কিছু কেসের ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না। ছিলেন যখন পুলিশ এসেছিল? ছিলাম। কি করতো কি আপনার বাবা? তো কি করতো? উনি এক্সপোর্টের কাজ করে। উনি কি কাজ করতো? উনি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কাজ করেন। এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কাজ করতো। তারপর কালকে পুলিশ আসলো, এসে আমাদের বাড়ি সার্চ করলো, সার্চ করে বাবার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এগুলো সিজ করলো, সিজ করে নিয়ে বাবাকে নিয়ে গেল। আমাদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট, বাবার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টগুলো সিজ করলো, সিজ করে নিয়ে চলে গেল। আমাদের কিছু বলেনি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उखरा रोटरी क्लब और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। बुधवार की सुबह 7 बजे वह बंकोला रेल गेट से दौड़ शुरू हुई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती
और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बंकोला रेलवे फाटक से वाजपेयी मोड़, उखड़ा गांव, आनंद मोड़ होते हुए बंकोला रेलवे फाटक पर वापस आकर 4.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ पूरी की गई। उद्यमियों ने बताया कि आज मैराथन में 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इस वर्ष के मैराथन में अन्य राज्यों से भी कई प्रतियोगियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार प्रथम रहे, दूसरा अर्जुन टुड्डू। महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाली पूजा कुमारी प्रथम रही, जबकि श्यामली सिंह दूसरे स्थान पर रही। सभी प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र के अलावा नकद पुरस्कार भी दिया गया। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा, इस साल मैराथन के लिए हमारी थीम महिला सुरक्षा थी। इस मैराथन के माध्यम से समाज में महिला जागरूकता एवं महिला सुरक्षा का संदेश दिया गया। यह घोषणा की गई कि अगले साल के मैराथन की पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी जाएगी। इस अवसर पर एसीपी पिंटू शाह, सीआईबी पिंटू मुखर्जी, अंडाल थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल, लावदोहा थाना प्रभारी विजय दलपति, आईसी सिवली मंडल तथा उखरा रोटरी क्लब के अध्यक्ष और सदस्यगण उपस्थित रहे। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मैं रात में ट्रेन में चल के आई हूँ। मैं यहाँ पर पहली बार गेम करने आई हूँ। मैं गोरखपुर से आई हूँ। अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस करने। दिसंबर में फिर आएंगे। अच्छा, बोलिए। बहुत अच्छा लगा मैराथन में दौड़ के। अच्छा, व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। क्या नाम है आपका? पूजा वर्मा। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर संभावित हमले की आशंका जताई है। साथ ही खुफिया एजेंसी को सचेत किया है। इस संबंध में बात करने पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह हमेशा ही जनता के बीच में रहकर काम करते आए हैं। उन पर पहले भी हमला हो चुका है। सीपीएम के समय हमला हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के समय में भी हमला हुआ है। अब आतंकियों का हमले का डर है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूँ, जनता के लिए काम करता रहा हूँ और आगे भी जनता के बीच रहूँगा। जनता ही मेरी कवच और सुरक्षा है। केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री का ये कहना है जो बांग्लादेश का 3 जो टेररिस्ट आपके ऊपर हमला चल, इसमें मेरा टिप्पणी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जिसका पास इंफॉर्मेशन आया है गवर्नमेंट का एजेंसी, उसको इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हमारा जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो जिस तरीके से मुझे एडवाइस करता है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जनता का बीच तो रहना ही चाहिए। डर का कोई सवाल नहीं है। मेरा ऊपर सीपीएम का भी अटैक हुआ बहुत बार, टीएमसी का भी अटैक हुआ। अभी जंगी लोग करना चाहता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जनता का बीच रहा था, अभी भी रहूँगा, अगले दिन भी रहूँगा। जनता का बीच रहकर ही काम करूँगा और मेरा प्रोटेक्शन मेरा जनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित एक हरिशंकर भट्टाचार्य माइनिंग इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में क्रिसमस के अवसर पर एजी चर्च द्वारा कार्यक्रम के दौरान केक खिलाने को लेकर बड़ी अजीब स्थिति देखी गई, जब राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने एक साथ केक काट, लेकिन विधायक ने मंत्री के हाथ से केक खाने से इनकार कर दिया। हालांकि अंत में केक जबरदस्ती खिलाया गया। क्रिसमस के अवसर पर एजी चर्च विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां प्रभु यीशु के प्रकट होने का विषय, समाज में उनके योगदान और सभी के बीच प्रेम और भाईचारे का उनका संदेश दिया गया। रानीगंज के विधायक तापस बंदोपाध्याय ने
सैकड़ों श्रोताओं को इस विषय पर विस्तार से बताया। बाद में राज्य के मंत्री मलय घटक ने समारोह में भाग लिया। विधायक समारोह से जाना चाहते थे, लेकिन मंत्री ने उन्हें रोक दिया और विधायक को समारोह में वापस ले जाया गया। मंत्री ने 2-3 नृत्य गीत देखकर सभी लोगों को क्रिसमस की खुशी और सौहार्द का संदेश दिया। कानून मंत्री ने अपने भाषण में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला, ताकि छात्रों को, आम लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके। और उसके बाद केक काटने की रस्म में विधायक को साथ लिया और केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। हालांकि पहले दौर में विधायक स्वास्थ्य कारणों से मीठा केक खाने से कतरा रहे थे, लेकिन बाद में नियमों का पालन करते हुए विधायक ने थोड़ी मात्रा में केक चखा। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मंत्री के हाथ से केक खाने से इनकार नहीं किया था। वह सिर्फ इसलिए केक खाने से बचना चाहते थे क्योंकि उन्हें मिठाई खाने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि क्रिसमस के इस खास पल ने सबके सामने कुछ मिनटों के लिए खुशी का माहौल बना दिया, जिससे सभी काफ़ी खुश थे। इसके बाद दर्शकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर रानीगंज बोरो अध्यक्ष मुजम्मिल शहजादा, रेवरेंड बाबू कोमू, एजी चर्च कमेटी के राज थापा, गुलाम दास सह कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद थे। আজকের দিনে আমরা প্রার্থনা করি এই কাজ যেন দীর্ঘদিন ধরে করতে পারেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মানুষের সেবা যাতে করতে পারেন এবং এজি চার্চ স্কুল যাতে আরও বড়োভাবে এখানে হতে পারে। আমাদের আসানসোলে দেখবেন অনেক বড় এজি চার্চের বিল্ডিং আছে, যেখানে 5,000-6,000 ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। আগামী দিনে রানীগঞ্জের এজি চার্চও নিশ্চয়ই সেই বড় জায়গাতে পৌঁছাবে এবং এজি চার্চের সঙ্গে আমরা আজকে নয়। दूसरी ओर गिरजापारा स्थित वाइसलैंड मेथोडिस्ट चर्च में भी क्रिसमस के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने लोगों को बड़े दिन की बधाई दी। उन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा दिखाए गए सत्य रास्ते के अनुकरण करने के लिए लोगों से आह्वान किया। लगभग 100 वर्ष प्राचीन चर्च में रेवरेंड सुमन दास ने लोगों को प्रभु ईसा मसीह के जीवनी के बारे में जानकारी दिया। लोगों ने कैंडल जलाकर प्रभु यीशु को श्रद्धांजलि दिया। इस आयोजन को सफल बनाने में सचिव अल्फ्रेड दफादार, संयोजक सलमान सिंह, सुजीत चौधरी, संजीत नाग, पूर्व सचिव सुभाषिष दास ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग मौजूद थे। আমরা তার মুখ থেকে আমরা শুনতে পেয়েছি যে কজন মহাপুরুষ আমাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা কষ্ট পেয়েছে সেই সব মানুষের জন্য, যারা কোনো ধর্মীয় দিশা পাননি সেই সব মানুষদের জন্য তিনি একজন দিক নির্দেশক হিসেবে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই যুগ যুগ ধরে যিশুকে আমরা ঈশ্বরের नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिसमस के शुभ अवसर पर रानीगंज में सैमसंग के नए एक्सक्लूसिव शोरूम में 3 दिवसीय क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया। इस शोरूम को सैमसंग स्मार्ट कैफे नाम दिया गया है। इस अवसर पर जीवन ज्योति फूड्स के रिडम खेतान ने बताया कि यहाँ पर ग्राहकों को बड़े शहरों के सैमसंग शोरूम जैसे सभी सुविधाएं मिलेगी। सैमसंग स्मार्ट कैफे में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप जैसी सैमसंग की पूरी रेंज उपलब्ध है। श्री खेतान ने बताया कि ग्राहकों को यहाँ पर नवीनतम मॉडल और सभी प्रकार के सैमसंग उत्पाद मिल जाएंगे। शोरूम के उद्घाटन समारोह में सैमसंग के एरिया बिजनेस मैनेजर रजनीश कुमार, जोनल मैनेजर विकास मस्कारा, जीवन ज्योति फूड्स के संदीप खेतान, विशाल खेतान, विकास खेतान, श्वेता खेतान, बिंदिया खेतान, राकेश खेतान, गिरधारी खेतान उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर जयप्रकाश जोकनिया, अजय खेतान, दीपक तोदी,
सुरेश अग्रवाल, महेश सांवरिया सह खेतान परिवार के सदस्य मौजूद थे। उनको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस, एक मेट्रो सिटी वाला एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पर देने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा था। अगर वो लोग कुछ भी मतलब बोलते प्रीमियम अगर वो लोग परचेज करना चाह रहे थे, जैसे सैमसंग का Z सीरीज़ हो गया, सैमसंग का S सीरीज़ हो गया, सैमसंग के वेरिड रेंज ऑफ लैपटॉप्स हो गए, टैब्स हो गए, वेरिएबल्स, सब कुछ उनको एक वन रूफ के अंडर में यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पर जो भी मिल रहा है एक ट्रस्ट वर्दीनेस, एक वाओ एक्सपीरियंस उनको यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सबसे मेन चीज़ वही है जो कि उनको लेने के लिए एटलीस्ट दुर्गापुर तक जाना पड़ रहा था, वो चीज़ अब उनके लिए यहाँ रानीगंज में अवेलेबल है। कुछ होगा क्या? यहाँ पर सब कुछ वही मिलेगा जो आपको अदर ब्रांड्स, अदर शोज़ में मिल रहा है, बट आपको एक वाओ एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे हम लोग स्टूडेंट्स के लिए अलग स्टूडेंट ऑफर्स देते हैं और कॉर्पोरेट्स के लिए कॉर्पोरेट ऑफर्स देते हैं हम लोग यहाँ पर, और जैसे हर एक परचेज पे एक एश्योर्ड गिफ्ट रहता है। और रानीगंज के जो बेस है वो उनको और कहीं पर जाना नहीं पड़े, उनको वो एक्सपीरियंस रानीगंज में ही मिले, सबसे मेन रीज़न वही है। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर जैसे हम लोग का लॉयल्टी प्रोग्राम रहता है, आप हर एक परचेज करते हैं, उसके बाद जो सेकंड परचेज करते हैं उसमें आपको कुछ ऑफर्स मिलते हैं, जो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बोलते हैं, जो आप लॉयल है, अगर आप मेरी लॉयल है, आप मेरे स्टोर में आके फर्स्ट परचेज कर रहे हैं, फिर आप मेरी नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।